साई बाबा भाई बात करके उसके बाद मीटिंग चलेगी। చాలా సంతోషం మీరు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి అన్ని భాషల నుంచి కూడా ఇవాళ మన ముస్లింల గురించి అన్ని విషయాలు అంటే ముఖ్యంగా ఎలక్షన్స్ ముస్లింలకు ఏం కావాలి, ముస్లింల తరఫున ఇంటలెక్చువల్స్గా ఆయా సంఘాల పార్టీలుగా ప్రతినిధులుగా మనము వివిధ రాజకీయ పార్టీల ముందు, ముఖ్యంగా ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల ముందు ఎలాంటి ఒక సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్స్ కలిసి చేసిన ప్రయత్నం వల్ల ముస్లింలందరూ కూడా ఈ ఒక ఆలోచనగా మసులుకున్నారు. 16 జమాతులు ఒక్క వాయిస్గా ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అనుకొని మనం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవాళ ముస్లింల గురించి ముస్లింలు దేశవ్యాప్తంగా భయాందోళనలో ఉండడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అట్లాంటి పరిస్థితులు దేశంలో నెలకొని ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎలాంటి పరిస్థితులు చూడవలసి వస్తుందో అని చెప్పి ఒక భయాందోళనలు మనలో ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ మనకొక దారి చూపై ఒక ఆశాజనకంగా కనిపించాయి. కర్ణాటకలోని ముస్లిమ్స్ అందరూ ఒక సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్స్ కలిసి చేసిన ప్రయత్నం వల్ల ముస్లింలందరూ కూడా ఒక్క తాటి మీదకి వచ్చి ఒక్క ఆలోచనగా మసులుకున్నారు. 16 జమాతులు ఒక్క వాయిస్గా పరిభాష లేదా చీలిపోకుండా నిలబడమే కాకుండా ముస్లింల ఓటు చీలిపోకుండా ఎక్కడ ఎవరిని గెలిపించుకోవాలో ఆ సివిల్ సొసైటీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నడుచుకున్నారు. తద్వారా అక్కడ బీజేపీని ఓడించడం సాధ్యమైంది. అది మనకి ఒక ప్రేరణ, ఒక మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్న విషయం. అట్లాంటి దశలో మన ముందు బీజేపీని ఓడించడం అనేది ప్రధాన ఎజెండాగా మిగతా ముఖ్య పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారి ముందు మన డిమాండ్స్ని ఒక డిక్లరేషన్గా ప్రకటించడం అనేది మనం ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పేసి విషయాలు బట్టి మనము ముస్లింలుగా ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఆలోచిస్తా ఉన్నాం. ఈ సమయంలో ఇవాళ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో రాజకీయ సమీకరణాలు చాలా వేగంగా మారుతూ ఉన్నాయి. స్పష్టత రావడానికి ఇంకా కొంత టైం పట్టవచ్చు. ఆల్రెడీ కొంత ముస్లింలకు కూడా ఒక స్పష్టత వస్తూ ఉన్నది. సామాన్య ముస్లింల దగ్గర నుంచి ఇంటలెక్చువల్స్ వరకు ఆలోచనలో పడ్డారు. గత తెలంగాణ వచ్చాక 2 ఎలక్షన్స్లలో కూడా కేసీఆర్ ముస్లింలకి 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తానని చెప్పి చెప్పడంతో పాటు ఉమ్మడి జిల్లాలలో ఒక్కొక్క జిల్లా నుంచి ఒక్కొక్కరిని ముస్లింకి టికెట్ ఇచ్చి మరి గెలిపించుకుంటానని చెప్పడంతో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇస్తానని చెప్పడంతో పాటు ప్రతి మీటింగ్లో కూడా పక్కన ఒక ముస్లిం పెట్టుకొని మరి మనల్ని నమ్మిస్తూ వచ్చాడు. అట్లాగే ఉర్దూ భాషకు సంబంధించి 2వ అధికార భాషగా ప్రకటించడంతో పాటు ఉర్దూని సపోర్ట్ చేస్తూ ఆదుకుంటానని చెప్పాడు.
ఆ టైంలో ముస్లింలందరూ ఇందులో 10% రిజర్వేషన్ కోసం బిల్లు పాస్ చేయించి కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని పంపించేసి చేతులు దులుపుకోవడం, అది ఎటుబడిలో అక్కడ వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించాలని చెప్పి తెలిసి మరి అట్లా చేయడం, దాని తర్వాత ఏ ప్రయత్నం చేయకపోవడం కూడా మనం చూసాం. తర్వాత తరుణంలో అగ్రవర్ణాల పేదల పేరు మీద ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అంటే 10% రిజర్వేషన్ కేటాయించడం, తద్వారా రాష్ట్రాల్లో ఆయా జనాభా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలు తమకు అనుకూలంగా రిజర్వేషన్ ఇవ్వవచ్చు అని చెప్పి ఒక మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. అదే లెక్క ప్రకారం ఎస్టీలకి 10% రిజర్వేషన్ कमेटी केसीआर ने क्या बोला था कि सचार कमेटी जो है, ये सचार कमेटी का रिपोर्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कोशिश किया था। कब बोला था? तेलंगाना आने से पहले मुस्लिम जेएसी के स्टेज के ऊपर हैदराबाद के अंदर क्या बोला था? ये जो है ना सचार कमेटी मैं लागू करूंगा। केसीआर वो टाइम में भी वही बोले थे कि ये सचार कमेटी लाने के लिए मेन रोल मेरा था। लेकिन मैं पूछता हूँ केसीआर साहब से, जब सचार कमेटी का रिपोर्ट आपको मालूम है कि मुसलमान पसमानदे है, तो मुसलमान पसमानदे है सचार कमेटी के रिपोर्ट में आपको मालूम है, फिर आपने सुधीर कमेटी क्यों लगाया? सुधीर कमेटी लगाया ना, चलो 12% रिजर्वेशन आप देंगे बोले, कर्नाटक और तमिलनाडु की शक्ल में देंगे। क्या आपका कोई काफिला कर्नाटक गया? क्या आपका कोई काफिला गया? नहीं गया। क्यों? तो मुसलमानों को केसीआर धोखा दे रहा है। मुसलमानों को पक्का मुसलमान केसीआर का फोन है। फर्स्ट जब 2009 के इलेक्शन के अंदर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी के पीरियड में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो आप याद रखो सब लोग कि केसीआर के अंदर के कपड़े क्या है। 2009 इलेक्शन में इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, केसीआर जाकर आडवाणी को मिला। केसीआर जाकर आडवाणी को मिला। अभी बेटी को बचाने के लिए मोदी को मिल रहा है। हमको जागना जरूरी है और मुसलमानों को जगाना जरूरी है। खाली अकेले सलीम पाशा, अकेले स्काई बाबा करने से नहीं होता है। यहाँ चंद लोग बैठ के हमारे, देखो जितने भी साथी बहुत बात की अभी तक, कौन है? आखिरी तक कोई नहीं। जो जिम्मेदार है डिस्ट्रिक्टों से आए, आखिरी तक बैठे हैं, आखिरी तक बैठे हो। और मेरे भाई सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, अभी नीट का एग्जाम हो चुका है। हमारे बच्चों को एमबीबीएस, इंजीनियर, ये तमाम सीटें आना जरूरी है। जो केसीआर ने 12% का रिजर्वेशन का जो बात किया था, 12 में से कांग्रेस गवर्नमेंट जो 4% दिया था, उसमें से 1% निकाल दिया। अभी नीट के जो बच्चे हैं एमबीबीएस के लिए, हमारे कितने बच्चों के सीटें जाएंगे? पहली फुर्सत में हम जितने भी यहाँ साथी बैठे हुए हैं जो बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, हम तमाम लोग मिलकर पहले चीफ सेक्रेटरी से मिलना चाहिए कि आप प्लेसमेंट लगाओ। या गवर्नमेंट 4% देगी या 3% के हिसाब से एमबीबीएस की सीट देगी। 4% देगी या 3%। बहुत बड़ा हमारे बच्चों का एमबीबीएस में नुकसान हो रहा है। इतना नुकसान हो रहा है, हमारे 100 बच्चों को सीट नहीं आएगी। सलीम, ये बहुत जरूरी बात है। ये 2-3 दिन के अंदर जो भी जिम्मेदार है, कांग्रेस के, बीएसपी के, टीआरएस के, बीजेपी, तमाम लोग मुसलमान जाके चीफ सेक्रेटरी को पूछना चाहिए कि आप इस बार आप नीट में 4% के हिसाब से हमारे बच्चों को रिजर्वेशन देंगे या 3% के हिसाब से देंगे। ये आप प्रेस मीट लगाओ और प्रेस मीट में बोलो कि सच्चाई क्या है। जो सोशल मीडिया में, जियो में, हर जगह दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि 3% कर दी केसीआर। बोलो अब केसीआर आरएसएस का रिश्तेदार नहीं है? आरएसएस का रिश्तेदार नहीं है। अभी मैं कल की बात बता रहा हूं। कल एक केसीआर जी जियो लाए। क्या लाए हैं? दलितों को कितना? 1 लाख करोड़। कितना? एक जियो है। दलितों को शकन दलित बंधु में 1,29,800 लोगों को नहीं कह रहे, लोगों को 1,38,800 लोगों को दलित बंधु शकन में देंगे। और इसमें 118 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 118 ये कहां गया? ये नहीं, जियो में 18 है, उसके जियो में 18 है, ये कहां गया?
बीजेपी का निकल रहा अब वो नहीं, वो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अंदर की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है केसीआर जब बोलते हैं मुसलमान पसपांदे है तो हमारे को क्यों दलित बंधु नहीं देते? इसके ऊपर आवाज ये 2 दिन में हमको उठाना चाहिए। हम हमारे दलितों को जो दे रहे हैं 10-10 लाख रुपए, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। क्यों? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उठाओ और उनको सपोर्ट करो। जैसा कि बाबा साहेब आम्बेडकर के सेकंड राउंड टेबल प्रोग्राम में जो आगा खान जी ने किया था, हमको दलितों को सपोर्ट करना चाहिए, ओके। लेकिन ये जो है मुसलमान को क्यों नहीं दे रहे? ये 2 ही बात। पहले तो ये तमाम साथी सब बात किए, मैं कर रहा हूँ, तमाम साथी सब बात किए, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के लिए एमबीबीएस सीट के लिए अगर हम जाके बात करेंगे, हमारे तरफ से अगर 10 भी सीट आ गए हम बहुत खुश होंगे। एक प्लेस माइनस करा, उसकी वजह से 300 सीटें चले थे। तो ये जो है, ये जो प्रोग्राम लगा है सलीम पाशा, इतना मेहनत करते हैं कौम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग उनको अगर सपोर्ट करेंगे तो वो सलीम का जो सोच है वो सोच पूरी हो सकती है। और मैं तो बोलता हूँ कि सलीम साहब 10 सीट नहीं, हमें 15 सीट चाहिए, वो 10 को 15 करो। क्यों? तो सचार कमेटी क्या कहती है, हर तरीके से, मतलब हर जैसा एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, हर इसमें कम से कम 10% रिजर्वेशन देना चाहिए, कम से कम 10 चाहिए। तो हम अभी 14% है, मगर 14 से बढ़ गए हम लोग, तो हमको कम से कम 15 सीट चाहिए। 15 में 10 तो देंगे, कांग्रेस वाले 10 देंगे, बीजेपी वाले 10 देंगे, कोई 10 देंगे तो कम से कम हमारे 5 भाई तो असेंबली में बैठेंगे। ओल्ड सिटी छोड़कर, ओल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्टों की बात कर रहा हूँ। ओल्ड सिटी में जो भी जाएंगे वो डमी कैंडिडेट रहेंगे। तो ये जो मेरे को मौका दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरा नाम डॉक्टर इस्लामुद्दीन है। ये तेलंगाना आने के बाद भी साहब मुसलमानों के साथ और पूरी सारी तेलंगाना के पब्लिक के साथ प्रॉमिसेस करे, कई प्रॉमिसेस वो आज भी फुलफिल नहीं हुए। अगर दूसरे कम्युनिटी से कंपेयर करें तो मुसलमानों हुकूमत से क्या पूछना है, अपन को क्या होना है मुसलमानों को, बोले तो ज्यादा लोग नहीं बोल सकते मुसलमानों को, बोले तो अपने को क्या होना है, वो हुकूमत से क्या होना है, हुकूमत के बाद पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टीज है, वो पार्टियों के सामने क्या डिमांड रखना है, अपन मुसलमान ज्यादा नहीं बोल सकते। इसका मैं मेरे को समझ में आया क्या है, बोले तो ज्यादा मुसलमानों को पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम है दूसरे कम्युनिटियों से कंपेयर करें, इसलिए ये इसको ब्रेक करना है। मुसलमानों को क्या होना है, मुस्लिम से डिस्कस करना है, ये सारे डिमांड्स को इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट बना के ये हुकूमत के सामने एक तरफ और जो मेन पॉलिटिकल पार्टी से उनके सामने अपने डिमांड्स रखना है। इसको हम मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पे इसको एक नोट बनाने वाले हैं, एक बुक, नोट का मतलब एक छोटा बुकलेट के जैसा बनाने वाले हैं। ये तेलुगु में, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में, ये 3 लैंग्वेजेस में भी एक मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के डिमांड ये सोसाइटी के सामने, ये तेलंगाना स्टेट में हम उस पर ये चर्चा करना है। ये बहुत लंबी काम है, ये एक मेरा एक सलीम से नहीं होता, ये काम एक साई बाबा से नहीं होता, आप सब हम सब मिलके करें तो ये काम होता। मेरा एक नंबर 1 पहला मेरा गुजारिश है, यहाँ पे जो भी हमारे मेहमान आए, हर किसी को एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर भी होंगे, या वर्कर नहीं हो तो कुछ आइडियोलॉजी से जुड़े भी होंगे। ये पॉलिटिकल पार्टियों के आइडियोलॉजी, वर्कर, ये सब छोड़ दीजिए। ये मीटिंग खत्म होने तक अपने माइंड से निकाल दिए। ये मीटिंग खत्म होने तक अपन मुसलमान हैं, तेलंगाना स्टेट से हम मुसलमानों के, हमारे नाम से मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अपने कम्युनिटी के लिए ये हुकूमत के सामने क्या बात रखना है, अपोजिशन पार्टी के सामने क्या रखना है, ये अपनी ये मीटिंग का मकसद है। ये पहला प्रिपरेशन मीटिंग है। इंशाल्लाह आप अगर सब लोग साथ दिए तो, हम सब मिलके चले तो इंशाल्लाह एक अच्छा जो उम्मीद करके हम ये आज पहला कदम उठाए। हम मुस्लिम जेएसी के नाम पे
पिछले 3-4 साल से तो केसीआर साहब तेलंगाना मूवमेंट चलाते वक्त मुसलमानों के साथ जो भी वादे करे वो वादे उनको याद दिलाते आ रहे। वो अखबारों में आर्टिकल्स भी लिखे, प्रेस मीट भी करे, ऐसे राउंड टेबल मीटिंग्स भी करे। पिछले रमजान में हमको इफ्तार नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, ये स्लोगन भी दिए। हम आप 9 साल का केसीआर साहब की हुकूमत को देखने के बाद हमको यही समझ में आ रहा, हर रमजान में इफ्तार खाओ, सब कुछ भूल जाओ। मैं जो भी वादा दिया, आप इफ्तार खाओ, सब कुछ भूल जाओ। यही केसीआर साहब के ये जो मुसलमानों के साथ करे। मैं जो हमारे ये मीटिंग के प्रपोजल्स है, ये प्रपोजल्स मैं कुछ तकलीफ नहीं करता हूँ, ये प्रपोजल ही मेरा स्पीच है, आप गौर से ये सुनिए। उसके बाद मैं हर जो भी मेहमान है वो लोगों को हर एक को मौका हम लोग देंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 5 मिनट से ज्यादा कोई भी वक्त को नहीं लेना प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हम 5 मिनट में जो ये प्रपोजल्स में मैं कुछ करता हूँ बल्कि निकले तो भी मेरे को तो उम्मीद नहीं है एक मुसलमान के नाते। 9 साल एक सीएम साहब के हाथ में इतने काम रहते, ये प्रपोजल्स है एक दिन में कर सकते सीएम केसीआर साहब। मुसलमानों के इस देश में अगर मुसलमानों के ऊपर उनको प्यार मोहब्बत है, हमारे जो महमूद अली साहब मिनिस्टर है उनका एक ही बयान रहता, नंबर 1 सेकुलर साहब हमारे सीएम साहब। अगर सेकुलर सीएम केसीआर साहब सेकुलर है, एक ही दिन में ये काम कर सकते, क्यों नहीं कर रहे? ये अपनी सोचना है, अपने मुसलमान के नाते अपनी सोचना है। ये प्रपोजल से पहला तेलंगाना आने के बाद 9 साल में पहला प्रपोजल है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। आप अखबार फिर एक बार अखबार उठा के देखिए, जिस दिन तेलंगाना मूवमेंट चला रहे थे केसीआर साहब, मुसलमानों के साथ एक वादा करे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। हर डिस्ट्रिक्ट में जब 10 डिस्ट्रिक्ट थे, जब पुराने तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मुसलमान को मैं एमएलए टिकट दूंगा और उनको जिताने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। आज तेलंगाना में 2 बार हुकूमत में आए, सिर्फ आज केसीआर साहब के पास 105 एमएलए है। केसीआर साहब के पास 105 एमएलए है। ये 105 एमएलए में केसीआर साहब के पास एक ही एमएलए टीआरएस का है, वो भी बोलन में। अगर तेलंगाना में मुसलमानों का पॉपुलेशन कितना है? 14% है। 2011 सेंसस के हिसाब से मुसलमानों का 12% है। आज 2021 का पॉपुलेशन नहीं हुआ क्योंकि कोरोना का वजह से रुक गया। अगर आज तेलंगाना में 21 का पॉपुलेशन करें तो मुसलमान 14% है। 14% ऐसा मुसलमानों को एक एमएलए रहता, जो हुकूमत में टीआरएस पार्टी है वो पार्टी से एक ही एमएलए रहता। चलो एमएलए का छोड़ देंगे, तेलंगाना में हर कम्युनिटी को राज्यसभा सीट मिला 9 साल में। किसी कौम को अगर किसी कम्युनिटी को राज्यसभा सीट नहीं मिला, वो सिर्फ मुसलमान है। क्या मुसलमानों को आप एमएलए टिकट नहीं देते? राज्यसभा नॉमिनेट एक को भी राज्यसभा नॉमिनेट नहीं करे। और रही बात एमएलसी, जो मुसलमानों के एमएलसी है वो लोग का पीरियड खत्म हुआ तो रिन्यूअल नहीं कर रहे। जैसा उनका पीरियड खत्म हो रहा उनको वापस भेजा दे रहे, एमएलसी भी नहीं दे रहे, नॉमिनेटेड। अब मुसलमानों को एमएलए टिकट देने से, राज्यसभा देने से, एमएलसी देने से कौन सी पार्टी केसीआर साहब को रोक रही? बार सुनिए, आप एक बात बोल रहा हूँ, केसीआर साहब बीजेपी के खिलाफ अच्छा बयान करते, सिर्फ ये बयान सुन के अपन खुश हो जाएंगे क्या? ये बयान सुन के अपने हक को भूल जाएंगे क्या? ये बयान सुने तो अपना पेट भरता क्या? गरीब मुसलमान का पेट भरता क्या? ये बयान सुन के खुश हो गए तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता क्या? सब्सिडी लोन मिलता क्या? रिजर्वेशन मिलता क्या? अपने बच्चों को पढ़ाई मिलती क्या? सोचिए कितने दिन खुश होते। यकीनन वो अच्छा बीजेपी को डिफेंस करते, लेकिन मुसलमानों के हक को क्या करते वो भी बोलना है। टोटल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर दे रहे केसीआर साहब। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का है। हमारा प्रपोजल क्या ये है, पुराने 10 डिस्ट्रिक्टों में जहाँ मुसलमान जीत सकता, जीतने की जिम्मेदारी आप लेना। जब तेलंगाना मूवमेंट चलाते वक्त आप हमारे से वादा करें, वो जीतने की जिम्मेदारी आप लेना है। 10 डिस्ट्रिक्टों में
जहाँ पे मुसलमान जीतता वहां पे इस कमिंग इलेक्शन, अब आने वाले इलेक्शन में टीआरएस पार्टी से 10 टिकट देना, और उसके साथ साथ हमारे अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी 10 टिकट देना जरूरी है मुसलमानों को डिस्ट्रिक्टों में। क्या ओल्ड सिटी में टिकट देगा मुसलमानों को? नहीं, ओल्ड सिटी में नको दो, अगर आपको मेहरबानी है तो दे लो ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी छोड़ के डिस्ट्रिक्टों में मुसलमानों को 10 टिकट देना, एमएलए टिकट करके ये 12% रिजर्वेशन अमल करने की कोशिश कैसे। आज उनकी बेटी कविता, उन्होंने लिकर स्कैम में है, जेल में जाने वाले हैं, बेटी के वास्ते जाके बीजेपी के सामने झुक गए। क्यों मुसलमानों के 12% रिजर्वेशन के सामने क्यों बीजेपी के सामने नहीं झुक गए? बेटी के सामने, बेटी के वास्ते झुक जाते, बेटी को जेल को जाने के बचाने के लिए बीजेपी के सामने, मोदी के सामने झुक जाते, लेकिन मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन अमल करने के लिए नहीं झुकते। बीजेपी पार्टी जो भी बिल लाई, हर बिल को केसीआर साहब मदद करे, लेकिन हमारे 12% रिजर्वेशन को कामयाब नहीं करे। और एक बात, केसीआर साहब एक सुधीर कमीशन रिपोर्ट बिठाए तेलंगाना में मुसलमानों के लिए स्टडी करने के लिए। वो सुधीर कमीशन रिपोर्ट भी मुसलमानों को 9 से 12% रिजर्वेशन देना बोल के सुधीर कमीशन रिपोर्ट भी उसमें लिखे। ये केसीआर साहब खुद डाले सो कमीशन है। और तेलंगाना में पहला बीसी कमीशन बीएस रामुल के अंडर में आया। वो बीएस रामुल कमेटी भी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन बसने होता, ये लोगों को और इंक्रीज करना है 10% दियो बोल के तेलंगाना बीसी कमीशन भी रिपोर्ट दी। ये दो भी रिपोर्ट केसीआर साहब पढ़े, लेकिन वो रिपोर्ट निकाल के कचरे की कुंडी में डाल। ये रिजर्वेशन का है। जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन, आज सेंट्रल रिजर्वेशन बढ़ाने का जो भी राइट है, जो भी हक है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। अगर केसीआर साहब रिजर्वेशन बढ़ाना है बढ़ा सकते, वही सिलसिले में एसटीओ को 6% से 10% को बढ़ा दी, लेकिन मुसलमानों को 12% बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करना। एक जो भी रिटायर्ड जजेस है वो लोगों के साथ ये अमल लाने के लिए ये कमिटी बिठाना, एक आईएएस ऑफिसर का नाम पे एक कमिश्नरेट बनाना, ये एक प्रपोजल है। और एक, अगर मुसलमानों की बात करते ये लोग माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल, शादी मुबारक जब हासिल करके ये पोस्ट में से चले जाओ, मुसलमानों के लिए खुद एक पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल भी नहीं। हमारा प्रपोजल है एक पोस्ट मैट्रिक, लड़कों के लिए एक पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल। पूरे कितने होते? 66 होते। एक हॉस्टल में 200 से 300 बच्चों को अकोमोडेशन देके हम बच्चों को पढ़ा सकते। आज सलीम पाशा गारू తెలంగాణ రాష్ట్రం ముస్లింలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలు, మరి ముస్లింలు ఆ అన్యాయాలను ఎదుర్కొట్టి చాటి ఏ విధంగా హక్కులను సాధించాలనే అంశంపై ముస్లిం జేఏసీ ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ వెంట మేము చివరి వరకు ఉంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా కొనసాగిస్తున్నాం. ప్రధానంగా సలీం పాషా గారు మాట్లాడిన అంశాల్లో అన్ని దాదాపు కవర్ అయినాయి. మన మిత్రులకు ఒకటే సూచిస్తున్నారు, ఇక్కడ ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఎలక్షన్లో పోయేటప్పుడు తన ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో డిక్లేర్ చేస్తుంది ఏం చేస్తామని. అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ ఉద్యమ ఏర్పాటు అనంతరం టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో కొన్ని అంశాలను ఉంచుదని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని మీరు సావధానం ఇవ్వడానికి కోరుతా ఉన్నారు. ఈ అంశాల మీద ప్రతి సంవత్సరం పోరాటం చేసిన సంఘం అది. ప్రధానంగా ముస్లింలకు 12% రిజర్వేషన్ ఒక్కటి ఇక్కడ ప్రచారంలో ఉంది. సమైక్య రాష్ట్రంలో ఉర్దూ భాష అంటూ ఇంట్లో అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఉర్దూ భాష అభివృద్ధి అనేది పూర్తిగా కుంటుపడింది. టీఆర్ఎస్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది, ఇది స్పీచ్ కాదు, మా గుండె కోపాన్ని వ్యక్తం చేసుకోండి. ఉర్దూ భాషను 2వ అధికార భాషగా అమలు పరుస్తామని చెప్పారు.
ఒక ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చారు. ఎక్కడ కూడా ఉర్దూ భాష అమలు కాదు. ప్రధానంగా ఈనాడు ఇంకో ప్రధానమైన అంశము ఉర్దూ భాషను రెండవ ఐచ్ఛిక భాషగా ప్రవేశపెడతామని చెప్పారు వారు. సెకండ్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అంటే ప్రతి ఇంగ్లీష్ మీడియం BCA, BCB, BCE है, C और E हो गया. तो ऑप्शन में BC, C, BCE है नहीं है, तो हमारे लोग कैसे मिलेगा? एकदम खुला खुला बेवकूफ बनाने वाली बात है. तो मुसलमान बेवकूफ है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तुम क्यों ब्लॉक करें साइड में? तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं. C और E ब्लॉक है. ऑप्शन हल नहीं है. ऑप्शन नहीं का एप्लीकेशन जाएगा कैसे? अगर बोल भी दिया जाए चलो तुम लोगों को तुम्हारा हस्बैंड को मिलेगा, तुम्हारा नाई को मिलेगा, तुम्हारा मिलेगा, तो बोल भी दिए. अप्लाई करने जाने के बाद आपके सेक्शन में और ऑप्शन है नहीं. तो ये खुला खुला जनाब बीसी डेवलपमेंट के नाम से जो हमारे लिए फंड देने के जो बात किए हैं ये बिल्कुल धोखा है हमारे लिए. मुसलमानों को खुला खुला धोखा ये समझने की जरूरत है. सवाल करने की जरूरत है. सवाल करने की जरूरत है. ये सब इलेक्शन स्टैंड में चलने वाले बातें चल रही है. मेरी एक स्कीम का जो नारा लग रहा है तो यूट्यूब में डिटेल्स आ रहे हैं. गृहलक्ष्मी पथकम जो 3 लाख रुपये के बाद लैंड है और उनको 3 लाख रुपये दिया जाएगा. उसके अंदर भी घपले हैं. अभी पूरी चीजें आपको नहीं लगे लेके उड़ते उड़ते खबर हमको भी मिल गई. उसको बताया जाता है कि उसको काफी पूरी तरीके से डिटेल बाहर नहीं आया. डिटेल्स कुछ आए लेकिन जब अगर हाथ में आएंगे तो खुलम बोला जब आपके साथ बैठेंगे. लेकिन इसके अंदर चीजें हैं कि 2 बच्चे होना चाहिए और मुसलमान का 2 बच्चे क्या है. तो मुसलमान को काटने के हर हाथ में इस्तेमाल किए. एक बीजेपी खुलम खुला सामने आके बता रहे लिंचिंग करके मारपीट करके नमाज पढ़े तो उनको अरेस्ट करके खुला खुला दुश्मनी करें. ये लोग छुप छुपा के कर रहे. टीआरएस बनने के बाद बस डिफेंस आज जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई अल्लाह ताला उस कॉन्फ्रेंस को कबूल करे और जिस तरीके से मुस्लिम डिक्लेरेशन या एजेंडे की बात हो रही है आगे मुस्तकबिल में वो एजेंडा अमल में आए बोल के तहे दिल से मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ. और मैं आपको वाज़े तौर पर कहता हूँ कि 9 साल से मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी हुई. एक भी वादा पूरा नहीं हुआ केसीआर की हुकूमत के जानिब से. तो ये सवाल आता कि एक कमतरीन कमजर्फ वजीर आला केसीआर पे हम किस तरीके से भरोसा करना. जब 9 साल में वो हमारे वादों को ठुकरा दिया तो आगे आजमावे को आजमाना ये बेखूफी की बात हुई कि अगर से आजमावे को आजमाएंगे तो लिहाजा इस बीआरएस जमात को केसीआर को बॉयकॉट कीजिए. क्योंकि एक वजह है मेरे पास. आज मुसलमान पसमानदा हालत में SC ST से भी पिछड़ा हुआ है. क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चार कमेटी कहती है, रंगनाथन मिश्रा कहता है, PS किशन की रिपोर्ट है, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट है, BC कमीशन की रिपोर्ट है कि हम SC ST से भी पसमानदा हालत में है. 9 साल से हमारे जज्बातों को झिझोड़ा गया, हमको नौकरियों से दूर किया गया, हमको घर नहीं मिला, लोन नहीं मिला, तिजारत करने के लिए पैसा नहीं मिला. फिर हम ये जमात पे किस तरीके से एतबार करना. या चाहे आप पर्दे के पीछे की बात करो या पर्दे की आगे की बात करो या दबे अल्फाज में बात करो या आवाज को बुलंद करो. मैं तो कहता हूं कि अगर मुसलमानों को हक मिलना है मुस्तकबिल में तो कांग्रेस जमात को वोट कीजिए. हाँ, मैं कांग्रेस जमात का रुकून हूँ, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ. मगर मैं अपनी जमात की सताइश क्यों कर रहा हूँ? तो मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं है. आप मेरे को बताइए, आज मुसलमानों के हुकूक को रोता जा रहा है. मिला 12% तहफ़्फ़ुज़, मिला वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर, मिला लोन, कहीं से भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम कामयाब हुई, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम कामयाब हुई, इस्लामिक मरकज बना. कहीं तो भी एक जगह मेरे को आप बताइए कि हाँ बीआरएस हुकूमत कामयाब हुई हमारे हुकूक की हिफाजत करने के लिए. अरे इस कम तरीन ये हुकूमत है
कि हमारे मसाजिदा शहीद करके हमारे आंखों के सामने और तामीर करके हमको ही नहीं देती। जब केसीआर का मन चाहा तो सेक्रेटरिएट की मस्जिद को मिसमार कर दिया, शहीद कर दिया। उसका जब दिल बोला तो डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन तामीर कर डाला। मगर आज हम गुजारिश कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे हैं और भीख मांग रहे कि हमको हमारी मस्जिद लौटा दो। पर केसीआर तानेशाही के जुनून में इस कदर मशगूल है कि वो हमारी मस्जिद नहीं लौटा रहा। तो ऐसे कमतरी कमजोर इंसान का नेता आज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, अल्लाह ताला उस कॉन्फ्रेंस को कबूल करे। और जिस तरीके से मुस्लिम डिक्लेरेशन या एजेंडे की बात हो रही है, आगे आजमावे को आजमाना ये बेखुफी की बात हुई कि अगर से आजमावे को आजमाएंगे तो लिहाजा इस BRS जमात को केसीआर कीजिए। क्योंकि एक वजह है मेरे पास, आज मुसलमान पसमानदा हालत में SC ST से भी पिछड़ा हुआ है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चार कमेटी कहती है, रंगनाथन मिश्रा कहता है ये शख्स कुछ नहीं कर सका। तो मैं इसको क्या नाम दूं? आप मेरे को बताइए मैं क्या नाम दूं? सुधीर कमीशन की रिपोर्ट बोल रही है कि 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है, 43% मुसलमान के पास जाति घर नहीं है, 40% मुसलमान अगर से सुबह मेहनत करेंगे तो रात में रोटी खाएंगा। काम कर रहे हैं। और 16 जुलाई के दिन एक जो है ना अफजलगंज से नामपल्ली मुनज़्ज़िम किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों से दिल से इल्तिमास करता हूँ, बहुत ही अपील करता हूँ कि वो तमाम लोग जो है ना रोडों पे निकल के पहली मरतबा अपने आप को जो है ना प्रोटेस्ट की शक्ल में पेश करें। क्योंकि आमतौर पर इज्तिमाई तौर पर गुफ्तगू बहुत हुई, तो मेरे को मौका देने के लिए शुक्रिया। और है एक जमात बात की सो है, आप बताइए SC वोटिंग में 30% वोट डालता, रैतु बंधु 40% वोट डालता। पोलिंग बूथ का डाटा मेरे पास है, 30% आपका जो सो वोट है। मैं कई को एजुकेशन की है, अक़लियात को ज़रूरत है तो रोज़गार, अक़लियात को ज़रूरत है तो ऐसे वकीलों की है जो बेगुनाह, जो मुसलमान जेलों में बंद है, जिनके ऊपर जो है केसेस बुक हुए हैं, उनको छुड़ाने की। क्योंकि अगर मुसलमान कौम जागरूक होती है तो पूरा हिंदुस्तान जागरूक होता है। हमारे को एजुकेशन की ज़रूरत है। जहाँ केसीआर जी ने कहा था KG to PG फ्री, और जहाँ केसीआर ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी दूंगा, हमारे को इन दो चीज़ों की अहम ज़रूरत है। और हमारे को देखना है कि हमारा समाज या आजकल का मुसलमान कहाँ है। रोज़ कत्ल गारत हो रहा है, रोज़ खुदकुशी हो रही है। क्या हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं? क्या हम उन शादियों में जाने से अपने आप को रोक रहे हैं जहाँ पे बेकारी के रसूमात हैं, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है, बैंड बाजा है, मरफा है? हमको सोचना चाहिए कि हमारे निकाह कैसे होने चाहिए सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। हर एरिया में मस्जिद कमेटी होनी चाहिए जहाँ पे घरों के फैसले हों, मियाँ बीवी के फैसले हों या जायदाद के फैसले हों, जो भी है अपनी कमेटी में फैसले होने चाहिए। शुक्रिया। सोचना चाहिए, आपकी लाखों करोड़ की जागीर जब लूट के खा सकता है ये शख्स, ये पार्टी, तो आपको इसमें क्या देंगे। और इनके जो चाटोकार है वो सिर्फ नंबर 1 CM बोलने में है। आप देख सकते हैं एक एक दिन में तेलंगाना में नंबर 1 पुलिस बोलने वाले होम मिनिस्टर साहब एक एक दिन में 7 कत्ल हो रहे हैं, 5 कत्ल हो रहे हैं। मैं फिर आपके चैनल से चैलेंज से बोल रहा हूँ, आप पोल सिटी के 7 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसीज निकाल के देखिए कितने मर्डर्स हुए हैं। ये एक महीने में कम से कम 1 मर्डर और 2 मर्डर अगर नहीं हुए तो समझिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ खास डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। इतने मर्डर हो रहे हैं और नौजवानों के मर्डर हो रहे हैं। एक बच्चा, एक लोथड़ा जब बड़ा होता है, अम्मा बाबा की उम्मीद आस होती है, बहुत उससे अम्मा बाबा को बहुत सहारा होता है, वैसे नौजवान बच्चे नशे की हालत में चले जा रहे हैं। हर जगह अगर शेखिया साहब डेवलपमेंट करे तो शराब क्या करे, शराब के अड्डे खोले, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे। मेरी आवाज़ जहाँ तक मुसलमानों को जा रही है कि मैं उनसे बोलूँगा कि आप बेदार हो जाइए। आपको जो माइनॉरिटी का लोन 2.5 लाख लोग एप्लीकेशन डाले वो भी आपको मिलता नहीं मिलता अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन करीब है, कोई चीज़ इन्हों कर नहीं सकते। फिर इनके झूठे वादों में मत आइए, जब तक ये आपके वादे पूरे नहीं हुए ना होते। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकते।
चाहे वो रिजर्वेशन रहने दीजिए, चाहे जुडिशल पावर रहने दीजिए, या आपको लोन रहने दीजिए, ये नहीं दे सकते। तो इनसे होशियार हो जाइए, जैसा कर्नाटक इनको मज़ा चकाई है फिरका परस्ती को। अब जाके मोदी के गुड़ में बैठे हुए केसीआर, और असदुद्दीन ओवैसी साहब का चैलेंज था मैं मरे दम तक केसीआर के साथ रहता हूँ, तो शायद अभी भी रह सकते हैं उनके साथ, या फिर वापस घर वापसी हो सकती होगी। तो मैं ये आवाम से बोलूँगा कि आप लोग होशियार हो जाइए और केसीआर को समझिए और सवाल करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। और एक इनकी जानिब से एक मुस्लिम डिक्लेरेशन, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का भी ऐलान हो रहा। 9 साल से आप देखेंगे कि केसीआर ने मुसलमान के पीठ पे खंजर भोंका, वादा खिलाफी की, मुसलमानों के मस्जिदों को मिसमार कर दिया। 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा था, 12% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिले। हमारी वक्त की जायदाद लूटते गई थी, लूटते रही और आगे भी लूटते रहेंगी अगर से केसीआर की हुकूमत रहेगी तो। केसीआर जालिम की हुकूमत में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली, लोन नहीं मिला, स्कॉलरशिप नहीं मिली, वेलफेयर स्कीम समझ में नहीं आए, तो फिर मुसलमान किस तरीके से एतबार करना ये कमजोर कमतरीन केसीआर पर। केसीआर टीआरएस से बीआरएस पर आ गया और मुसलमान आज भी गरीब पसपंदा हालत में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुधीर कमीशन की रिपोर्ट कर रही कि तेलंगाना का मुसलमान SC ST से भी बिछड़ा हुआ है, पसपंदा हालत में है, 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर मुसलमान खामोश कैसा बैठना? 9 महीने में मैं ये नाकारा केसीआर तेलंगाना रियासत का वजीर आला 9 साल में कुछ नहीं कर, तो मैं इसको क्या नाम दूं? केसीआर साहब, आपके पास मर्दानगी नहीं रही, आप अब वो लफ्ज के हकदार ही नहीं रहे, क्योंकि आप मुसलमान को धोखा देते गए और मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो गया, जिस तरीके से कर्नाटका में मुत्तहिद हो गया, ओके, कांग्रेस की हुकूमत को लाया। इसी तरीके आगे इंतखाबात में मुसलमान मुत्तहिद होके कांग्रेस को फतेहाब करने वाला है। तो कांग्रेस एक वाहिद ऐसी जमात है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है, केसीआर से मुकाबला कर सकती है। तो आज केसीआर का मुस्तकबिल राशिद खान को खाकी चड्डी, RSS की खाकी चड्डी में नजर आ रहा। बीजेपी की छवि केसीआर बीजेपी का दूसरा पहलू, और इनके साथ है एक हिमायती जमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी की जमा, वो भी बीजेपी की बी टीम, BRS मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये 2 जमात मिलकर 9 साल से मुसलमान को गुमराह करे। गरीब था मुसलमान, आज भी गरीब है। इसकी माशियत मजबूत करने वाली एक ही जमात है, कांग्रेस जमात। तो हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि मसले मसाइल का हल किस तरीके से निकाला जाए। आज यहाँ पे कई मुख्तलिफ सियासती जमात के कायदीन है, सोशल वर्कर्स है, एडवोकेट्स है और NGO के सदर है, आम आदमी है। तो आज उनको अच्छी तरीके से पता चल गया कि केसीआर धोखा दे रहा है, 9 साल लगातार धोखा देता है। तो आगे हम एतबार नहीं करने वाले केसीआर पे, क्योंकि एक कमतरीन कमजोर पे एतबार करके हुकूमत में लाए, मगर एक कमतरीन शख्स पे और एक बार एतबार करना ये बेवकूफ़ी होगी। और ये वक्त मुसलमान बेवकूफ़ी का सबब नहीं बनने वाला, होशियारी का फैसला लेगा। राहुल गांधी की जमात को लाएंगा, रेवंत रेड्डी अन्ना को हम वजीर आला बनाएंगे रियासत तेलंगाना, और हमारे मुसलमान के हुकूक को महफूज रखेंगे। राशिद खान मैं लगातार मुस्लिम बंधु का ऐलान करो बोल के कई महीनों से मैं एहतजाज कर रहा हूँ। क्यों? ये हमारी माशियात कमज़ोर है। केसीआर साहब दलित बंधु तो दे रहे और मुस्लिम बंधु नहीं दे रहे। दलितों पे 5,000 करोड़ खर्च कर डाले, 50,000 दलित खानदानों को 10-10 लाख रुपए दिए, और मुसलमान को वो जो 120 करोड़ का वादा करे थे बैंक सब्सिडी लोन, वो भी नहीं मिला। अरे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। तो मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करो बोले केसीआर को, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि केसीआर ऐलान करने वाला नहीं है। सिर्फ मैं शऊर बेदार कर रहा हूँ, इसका पर्दाफाश कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि मुसलमानों का दुश्मन है आवाम, समझ जाओ। अगर से समझ जाएंगे तो आपका बेहतरीन तरीके से मुस्तकबिल रहेगा, नहीं समझेंगे तो फिर अंधेरों में आपकी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, आज जिस तरीके से मुसलमान गुजार रहा है। क्योंकि होती नहीं वो जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा,
उस कौम का हाकिम भी उसकी सजा है। तो ऐ मुसलमानों, इस शेर को समझो, मुत्तहिद होके कांग्रेस जमात सेकुलर जमात को कामयाब बनाओ और अच्छी हुकूमत कायम करो। जय हिंद, खुदा हाफिज़। ఈ సమావేశం తర్వాత మేము తెలియజేస్తాం. సప్లాన్ అయితేనేవి ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో హామీలు ఇచ్చింది. కానీ తను అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ 9 సంవత్సరాల్లో ఏ మాత్రం ఒక్క హామీని కూడా పూర్తిగా అమలు చేయలేదు. ఇంకోటి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుధీర్ కమిషన్ రిపోర్ట్ అనేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో వచ్చింది. ముస్లింలు ఎంత దారిద్ర్య రేఖ 85% దారిద్ర్య రేఖన బతుకుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా 43% మంది ముస్లింలకు సొంత ఇల్లు లేదు. 75% మంది ముస్లింలు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద బతుకుతున్నారు. ఇలాంటి రిపోర్టు కేసీఆర్ దగ్గర ఉన్న తర్వాత కూడా ముస్లింల కోసం, వారి సంక్షేమం, సాధికారత కోసం, అభివృద్ధి కోసం ఒక్కటంటే ఒక్క స్పెషల్ పథకం కూడా ఇంతవరకు కేసీఆర్ గారు పథకాన్ని తీసుకురాలేదు. దీని ద్వారా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎట్లయితే పేదరికంతో మగ్గుతున్నారో ముస్లింలు, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే పేదరికంతో మగ్గుతున్నారు. తెలంగాణ రావడం వల్ల ముస్లింలకు ఏ మాత్రం న్యాయం లేకుండా పోయింది, ఏ మాత్రం ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయింది. కాబట్టి ఇది వీటన్నిటినీ చర్చ పెడుతూ రేపు తెలంగాణలో రానున్న ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని ముందు, అదేవిధంగా ప్రధాన ప్రతిపక్షాల పార్టీల ముందు కూడా ఒక డిక్లరేషన్ను తయారు చేసి, ఒక ముస్లిం డిక్లరేషన్ ఒక నోట్ లాగా, ఒక బుక్లెట్ లాగా తయారు చేసి మా డిమాండ్స్ను కేసీఆర్ ప్రభుత్వము ముందు పెడతాం. అదేవిధంగా అధికారంలోకి రావాలని తహతహలాడుతున్న పార్టీల ముందు కూడా మా ముస్లిం డిక్లరేషన్ పేరు మీద మా డిమాండ్లు పెడతాం. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వమైనా ఆయా పార్టీలైనా మా డిక్లరేషన్ గురించి మాట్లాడాలి, చర్చ పెట్టాలి. వారి మేనిఫెస్టోలో మా సమస్యలను, మా డిమాండ్లను చేర్చాలి. మాకు నమ్మకం, ఎవరైతే అధికారంలోకి వచ్చినాక మా డిమాండ్లను నెరవేరుస్తారని ముస్లింలకు నమ్మకం కలుగుతుందో, అంత పూర్తిగా హామీ ఇవ్వగలుగుతారో, భరోసా ఇవ్వగలుగుతారో, ఈసారి వాళ్ళకే ముస్లింలు ఓట్లు వేసే విధంగా ముస్లిం ప్రజలకు మేము ఒక సందేశం ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ముస్లిం డిక్లరేషన్ కోసం ఇది ఒక్క ఫస్ట్ మీటింగ్. ఇట్లాంటి మీటింగ్లు ఇంకా 2-3 జరిగిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ఒక ముస్లింల అందరితోటి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి అన్ని పార్టీల అధ్యక్షులను, పౌర సంఘాల నాయకులను పిలిచి ముస్లిం డిక్లరేషన్ను మేము రిలీజ్ చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ తొలి మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన ముస్లిం డిక్లరేషన్ను ఈసారి తెలంగాణ సమాజం ముందు పెట్టబోతా ఉన్నాం.